Hello students, this is Vamshi sir, and today we are going to start the surface chemistry part 3. Before going through this, hope you have gone through the videos of surface chemistry part 1 and part 2. And अगर आपने नहीं देखा है तो I insist you to watch part 1 and part 2, then please watch this particular video. So let us start with surface chemistry part 3. So the first topic is colloids. A colloid is a homogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium. Colloid एक homogeneous system है जिसमें एक सब्सटेंस बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की तरह प्रेजेंट रहता है, उसको हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, और दूसरा सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. तो जनरली कोलॉइड्स में आपके दो तरीके के सिस्टम्स होंगे. जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, एंड द थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन मीडियम. नाउ इन अ डिस्पर्स्ड फेस the particles may be a single micromolecule, that is protein or synthetic polymer, but in dispersion medium the particles may be in all the three states. Means आपके dispersed phase में एक सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल जैसा प्रोटीन या पॉलीमर जैसा भी हो सकता है, पर आपका डिस्पर्जन मीडियम में आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं. कोलॉइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, सो दे हैव इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. Colloids can be classified on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. So dispersed phase and dispersion medium के physical state के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्लासिफिकेशन. टोटल 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन होते हैं. तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है. एंड आप देख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अगर आपका फिजिकल स्टेट है तो उसके एग्जाम्पल के साथ ये टेबल में दिया हुआ है. दैट इज इफ डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड एंड द मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड, तो एक कैटेगरी होता है दैट इज जेमस्टोन. In the second category, dispersed phase is solid and as a dispersion medium is liquid. For example, paints. The third one, dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas. For example, smoke, dust. The fourth one, if the dispersed phase is liquid and the dispersion medium is solid. For example, cheese, butter. Fifth category, the dispersed phase is in liquid state and the dispersion medium is also in liquid state. For example, milk and cream. The sixth category, dispersed phase in liquid state and dispersion medium in gas state. For example, fog. The next category includes the dispersed phase in gaseous state and the dispersion medium in solid state. For example, foam and rubber. And last category जिसमें आपका dispersed phase gaseous होता है और dispersion medium liquid होता है. For example, leather. So ये 8 categories थे जिनमें हमारा पहला टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. मतलब अगर मैं कोलॉइड्स को उनके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन के हिसाब से अगर क्लासीफाई करूं तो कोलॉइड्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज लायोफिलिक कोलॉइड एंड द सेकेंड टाइप इज लायोफोबिक कोलॉइड. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड. द फर्स्ट टाइप इज लायोफिलिक कोलॉइड्स. जनरली लायोफिलिक मीन्स liquid loving. So the colloidal solutions which are directly formed by mixing the substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid are called lyophilic colloids. तो lyophilic colloids मतलब वो जब आपके कुछ substances directly dispersion medium के साथ easily mix होके colloidal solution बनाते हैं. For example, gelatin and another example is starch. तो इसका मतलब ऐसे colloidal solutions जिसमें डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्पर्जन मीडियम के साथ एक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक.
मतलब ये डायरेक्टली कोलॉइडल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ओके, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिलेटिन, गम, स्टार्च या जेली, ये सब लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर आता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, कि ये लायोफिलिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, द कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच डिस्पर्स्ड फेस हैज़ मोर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्स्ड फेस आपका रेडिली डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स होके एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है, वो लायोफिलिक कोलॉइड होता है। इसको हम इंट्रिंसिक कोलॉइड्स भी कहते हैं। दे आर स्टेबल और सेल्फ स्टेबलाइज्ड, ये अपने आप को ईजिली स्टेबल रख पाते हैं। ये बहुत ही रिवर्सिबल इन नेचर के होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है। एंड दे आर हेविली हाइड्रेटेड, दे कैन नॉट बी ईजिली कोएगुलेटेड। कोएगुलेशन मीन्स इफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर लिक्विड अगर सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं। तो दीज लायोफिलिक कोलॉइड्स कैन नॉट बी ईजिली कोएगुलेटेड, इनमें हम इसके लिक्विड स्टेट से इसको सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में हम नहीं बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लायोफोबिक कोलॉइड्स। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग। तो द सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स with suitable liquid or dispersion medium, they do not form colloidal solution and they are called lyophobic colloids. इसका मतलब ये है कि ऐसे substances जो dispersed phase के हैं और dispersion medium के साथ colloidal solutions को form नहीं करते हैं। ओके, मतलब वो उसके dispersed phase के particles dispersion medium के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, इसलिए इनको हम लायोफोबिक कोलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इन वाटर। गोल्ड पानी में कभी सोल्यूबल नहीं होता है, इट इज ऑलवेज इनसोल्यूबल, सो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। The first characteristic is the colloidal solutions in which the dispersed phase does not mix with the dispersion medium. Yes, इसमें dispersed phase के particles dispersion medium के साथ mix नहीं करते हैं. It is unstable. It is not reversible. That is, its nature is irreversible. And it readily coagulates by addition of small electrolytes. मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐड कर देने से इसके पार्टिकल जो लिक्विड सॉल्यूशन में है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड बन सकते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट पॉइंट, लायोफिलिक आर सॉल्वेंट लविंग whereas लायोफोबिक आर सॉल्वेंट हीटिंग। लायोफिलिक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं whereas लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। लायोफिलिक प्रेसिपिटेशन प्रोसेस रिवर्सिबल होता है whereas लायोफोबिक में प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। लायोफिलिक में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कोलॉइड्स एंड द लिक्विड whereas in लायोफोबिक there is less interaction or attraction, or we can say there is no attraction between colloids and liquid. The lyophilic is highly viscous, whereas the lyophobic have the same viscosity as the solvent. And the last, lyophilic forms a lyophilic solution, whereas lyophobic forms a lyophobic solution. The next topic is classification of colloids. This is the third category of classification, that is on the basis of type of particles in dispersed phase. आपके dispersed phase में किस तरीके के particles हैं, इसके बेस पे अगर कैटेगराइजेशन किया जाए तो colloids आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। The first is multimolecular colloid, the second one is macromolecular colloid, and the third one is associated colloid. So let us understand what are these three with the help of a tabular data. Now we have a comparison of multimolecular, macromolecular and associated colloids. Let us see what's the difference between these three.
multimolecular colloids are formed by aggregation of large number of atoms or molecules with diameters less than 1 meter. मतलब मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स जो भी है वो बहुत सारे छोटे 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 एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है उनके एग्रीगेशन से बनता है. द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स. मतलब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में आपके साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं. एंड द एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयन्स इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब अगर बहुत सारे आयन्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में एग्रीगेशन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीमोलिकुलर लायोफिलिक होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर लायोफोबिक होते हैं एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स दोनों टाइप के बोथ लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक इन नेचर होते हैं. द थर्ड इज मॉलिक्यूलर मास. मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में मॉलिक्यूलर मास आपका इंटरमीडिएट होता है यानी कि मॉडरेट होता है, वेयर एज इन मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स आपका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास. एंड द लास्ट डिफरेंस इज द मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स आर हेल्ड बाय वीक वैन-डर-वाल forces, whereas macromolecular colloids are held by strong वैन-डर-वाल forces due to the long chains, and the associated colloids are held by strong वैन-डर-वाल forces with increase in concentration. मतलब कि अगर जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैन-डर-वाल का है वो बढ़ेगा. So these were the 4 basic differences between macromolecular, multimolecular and associated colloids. तो आज हमारा क्लास हम यहीं एंड करते हैं. होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज वेरी यूजफुल टू यू. आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. स्टे अपडेटेड. देयर विल बी मोर वीडियोज़. वी विल बी कमिंग विद सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4. Hope you had a good class. Thank you so much.